Good morning, students. In previous videos, we have discussed about iron and steel industry, that is basic industry. In this video, we are going to discuss about textile industries. कपड़ा उद्योग, it means textile industry. Okay, बेटा. Textile industry, जो कि आपका that is the last topic of industry chapter 21st, 21 chapter. Cloth is the basic need of human being. Cloth making is an ancient art, and it has provided employment to a large number of people, not only in industrially developed country but is also developing country. Cloth एक fundamental need है of all human being, and textile industry provide employment not in only developed country, it is also provide employment in developing country. The raw material for this industry is obtained from hair of animal and vegetation. हमें जो रॉ मटेरियल प्राप्त होता है वो एनिमल्स और वेजिटेशन के रेशों से मिलता है या बाल से मिलता है. Wool, silk, cotton, flax and jute are raw material derived from natural source. Some raw material has been developed through technology and scientific knowledge like nylon, rayon, terylene and terry wool. Some fiber have been developed by blending natural and artificial fiber. जैसे terrycot, a mixture of vegetation and chemical is rayon made up of pulp. Rayon लकड़ी के गुद्दी से और वेजिटेशन से मिलकर के बनता है. The textile industry is near about 7,000 year old. It means oldest industry. क्योंकि बहुत पहले से ही कपड़ों का प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं होने लगा था ना. जनरली कॉटन का प्रोडक्शन या कॉटन की यूज की जो नॉलेज जो हमें मिलती है वो मिलती है हमारे यहाँ इंडस सिविलाइजेशन में. ओके, आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से चाइना में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक लोकेशन है जो कपड़ा का प्रोडक्शन कर रहे हैं, पुराने जो हैंडलूम टेक्नोलॉजी से किस तरीके से कर रहे हैं. Okay, artificial fiber developed with the help of chemical and brighter, more beautiful and durable as compared to cloth based on natural fiber. जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं बेटा, जैसे कॉटन को छोड़ करके नायलॉन, टेरिलेन, ऐसा टेरिकॉट, ये ज्यादा ब्राइट होते हैं और मोर ड्यूरेबल होते हैं कंपेयर टू नेचुरल क्लॉथ, नेचुरल जो फाइबर से मिलकर के बनते हैं. और इन्हें दे डू नॉट रिक्वायर आयरनिंग, इन्हें प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं होती है. United States of America is an important producer of synthetic fiber. United America is an important producer of synthetic fiber. Industries are located in Pennsylvania and Mid-Eastern Atlantic coastal region. अब जैसा कि देख सकते हैं जर्मनी, यूके, इटली, फ्रांस and Netherlands, Switzerland, Spain are major producer of synthetic fiber. Japan has developed this industry in southern Honshu, Kyushu and Shikia Island. ये सदर्न पार्ट आप देख सकते हैं जापान का, ये जो एरिया है पूरा होन्सू, क्यूसू एंड सिक्या आइलैंड, ये एरियाज में सिंथेटिक इंडस्ट्री जो है ये इंडस्ट्रियां डेवलप्ड हैं. वैसे भी अगर हम एशिया के ईस्टर्न रीजन की अगर हम चर्चा करें तो जापान और रशियन ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया एंड चाइना आर वेरी डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एरियाज. द मेन थिंग्स इज द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. वी विल डिस्कस इन दिस द लास्ट टॉपिक, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड. दुनिया की सबसे पुरानी इंडस्ट्रियों में से एक है. इट ओरिजिनेट इन द इंडस वैली अबाउट 5,000 ईयर अगो. सबसे पहले ऐसा माना जाता है वर्ल्ड में कि फर्स्ट इंडस सिविलाइजेशन के जो पीपल थे दे यूज्ड फर्स्ट टाइम द कॉटन एंड प्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम कॉटन इन द वर्ल्ड नियर अबाउट 5,000 ईयर एगो. दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ द 18th century brought about a drastic change in textile industry. Before the revolution, cotton cloth was made by hand spinning wheel, but after industrial revolution, इलेक्ट्रिक या हैंड पावर लूम वर यूज द फर्स्ट इन द पावर लूम आ गए, एंड पावर लूम्स वर यूज्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इन ग्रेट ब्रिटेन एंड लेटर अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया, चाइना, जापान
and all important producer of cotton textile. In India, cotton textile industry was world famous before the industrial revolution. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के पहले हमारे यहाँ जो कॉटन का प्रोडक्शन था या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, दिस वाज वेरी फेमस. द मसलिन्स ऑफ ढाका, कोलिकोस ऑफ कालीकट, चिंटजेज ऑफ मसूलीपट्टनम एंड कॉटन ऑफ बुरहानपुर, सूरत एंड बड़ोदरा वर नोन वर्ल्ड वाइड ऑफ देयर क्वालिटी एंड डिजाइन. सूरत और बड़ोदरा गुजरात में, इसको अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. जैसे इंग्लैंड में मैनचेस्टर में सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है. कॉटन का जो प्रोडक्शन होता था, यहाँ के जो रॉ मटेरियल जाते थे और उनसे फिर न्यू क्लॉथ आते थे हमारे यहाँ. तो इस तरीके से अहमदाबाद में हमारा सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है. तो अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है. Since all of the work done manually, they could not stand the competition of color machine. चूंकि कॉटन के कपड़ों का प्रोडक्शन हमारे यहाँ हाथों से किया जाता था, हैंडलूम से उनका टेक्सटाइल कपड़े बनते थे, लेकिन वो मशीन से प्रोड्यूस्ड जो क्लॉथ थे उनका वो कंपटीशन नहीं कर पाए. प्रोडक्शन ऑफ हैंड वोवन टेक्सटाइल वर एक्सपेंसिव एंड कंपेयर टू प्रोड्यूस्ड ऑफ टेक्सटाइल मिल्स. और जो हाथों से प्रोडक्शन जिनका होता था उनका जो कंपेयर मशीन से जो प्रोडक्शन होता था वो उतना कंपेयर नहीं कर पाते थे. जिससे क्या होता था कि लोगों की जो डिमांड थी वो कॉस्टली नहीं होते थे जो मिल से बन के आते थे. तो हमारे जो हैंडलूम जो हाथों से प्रोडक्शन होता था, कपड़ों के निर्माण होता था, वो धीरे धीरे क्या हुआ बेटा, खत्म हो गया. ठीक है. ब्रिटिश ने किस तरीके से अपना एक फैलाया जाका कि यहाँ की जो इंडस्ट्री थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया. अब द मेजर प्रॉब्लम ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एक्सक्यूज मी फॉर 1 सेकेंड. ओके बेटा, सॉरी. Problem of cotton textile industry. The Indian textile industry is faced with the following problem that is mentioned in textbook. There is stiff international competition, especially from Japan, and Japan produce the fine quality of cotton fabric at much cheaper cost. हमारा जो सबसे जो मेन चैलेंज रहा है वो द कंपटीशन विथ सिंथेटिक फाइबर that many developed countries like France and Japan are producing synthetic fiber. और उनसे हमारा कंपटीशन कॉटन टेक्सटाइल का बहुत तेजी से नहीं हो पाया क्योंकि बहुत चीपली और ड्यूरेबल थे और उनकी कई एस्पेक्ट में वो उनकी क्वालिटी अच्छी थी. ये सबसे मेजर हमारा जो चैलेंज है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रहा है. इन अहमदाबाद एंड सम अदर रीजन मशीन्स हैव बिकम ओल्ड एंड ऑब्सोलेट. हमारे जो जहां पर कॉटन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, अहमदाबाद या गुजरात का जो रीजन है, वहां पर क्या हुआ कि जो मशीनें हैं वो काफी पुरानी हो चुकी है, तो वो उनका प्रोडक्शन जो अमाउंट है वो भी बहुत स्लो हो गया. ये भी एक चैलेंज है कि न्यू टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा जरूरत है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में. फार्मर हैव डाइवर्सिफाइड एंड आर प्रोड्यूसिंग अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट देन कॉटन, सो देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन. Recently, it means after independence, farmers were not interested, and now they are not interested in produce the cotton crops. So that is the problem, the shortage of raw material. So these are major challenges that are our cotton textile industry is facing here. The modern textile industry started in 1818. जो आधुनिक टेक्सटाइल है वो सबसे पहले 1818 में शुरू हुई. फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वाज सेटअप द नियर कोलकाता. पहली बार तो कोलकाता में सेटअप हुई, लेकिन वो बहुत ज्यादा रियल बिगिनिंग नहीं था इंडस्ट्री का. बट द आइडेंटिफाई विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉटन मिल इन मुंबई 1854. तो द फर्स्ट मिल जो एस्टेब्लिश हुई थी, जो सेटअप की गई थी कॉटन मिल, वो मुंबई में 1854 में. क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कॉटन का हमारा सबसे ज्यादा जो एरिया है ये गुजरात और महाराष्ट्र का एरिया है.
तो कॉटन यहाँ ब्लैक सॉइल पाई जाती है, तो ब्लैक सॉइल पाई जाने के नाते यहाँ पर कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था. सो फर्स्ट कॉटन मिल, टेक्सटाइल मिल established there in 1854. There were 1824 big textile mill in 1919. 1919 में आज के 21 ईयर एगो लगभग 1824 बिग मिल्स थी. आउट ऑफ दीज 1479 वर इन प्राइवेट सेक्टर एंड 192 इन पब्लिक सेक्टर एंड 153 इन कोऑपरेटिव सेक्टर. कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री में आप समझ सकते हैं कि काफी लोग कोऑपरेट करके जो चलता है, ज्वाइंट, उसमें प्रोड्यूसर सब लोग मिल करके चलाते हैं. कॉटन टेक्सटाइल्स मेनली लोकेटेड इन द कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये एरिया है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, तमिलनाडु में भी, मुंबई, अहमदाबाद आर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ दिस इंडस्ट्री. और बिसाइड दीज एरिया कानपुर, कोलकाता, नागपुर, इंदौर, सोलापुर, दिल्ली, कोयम्बटूर and other center of this industry, India export a large quantity of meal and handloom cloth to other countries. इंडिया कॉटन के जो प्रोडक्ट हैं इनको बहुत लार्ज अमाउंट में एक्सपोर्ट करती है टू अदर कंट्रीज. द शेयर ऑफ कॉटन फाइबर टू द टोटल फाइबर प्रोडक्शन हैज कम डाउन. जो कॉटन का जो कॉटन फाइबर का जो प्रोडक्शन है और टोटल फाइबर के प्रोडक्शन में थोड़ा डाउन हुआ है, बट इंडिया स्टिल प्रोड्यूसिंग मोर कॉटन टेक्सटाइल्स. ज्यादातर कॉटन कपड़ों का प्रोडक्शन कर रही है. The world ratio is near about 43 ratio 57, but India is still 59 ratio 41. There are in this way your chapter is completed, and some are key terms are industries, agro-based industries, mineral-based industries, large-scale industries, small-scale industries, public sector industries, private sector industries, joint sector industries, cooperative sector industries, retailer, wholesaler. These all the key terms, so note down in your notebook and try to learn it. In this video, in this 5 or 6 videos we have discussed about the industries, factor that affect the location of industries, and classification of industries, main industrial region of the world, industrial region of the India, and distribution of major industries and मेजर इंडस्ट्रीज जो है हमारे यहाँ, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वर्ल्ड की, और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में हमने स्टडी किया बेटा. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, नोट डाउन योर क्वेश्चंस एंड पुट इन वेयर डाउट क्लियरेंस क्लासेस विल बी कंडक्ट दिस नेक्स्ट टाइम. ओके, थैंक यू. एक्सरसाइज को फिल करके हम आपके पास पिक भेज देंगे. क्वेश्चन आंसर को जल्द ही इसको कंप्लीट करके आपके पास PDF चला जाएगा. ओके बेटा, थैंक यू.